Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Arfat Mujib from FEI Higher Secondary Institute. Today I am with chapter number 5. Chapter is about natural resources. And in this chapter today, my topic to discuss is weathering of rocks. कि rock weathering कैसी होती है, which later on leads to soil formation. It is 9th स्टैंडर्ड बायोलॉजी. आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स. वेदरिंग ऑफ रॉक जो होते हैं, इसमें वेदरिंग ऑफ रॉक्स, मगर कौन से रॉक्स? कंसोलिडेटेड रॉक्स, या वी कैन से दैट parent rocks जो होता है, parent rocks या bed rocks. They are also known as the bed rocks. They are deep inside the earth's crust. These parent rocks, consolidated rocks, इनसे ही disintegrating rock particles of rocks निकलते हैं. But what is the weathering? It is a process in which the consolidated rocks converts into disintegrated particles of rocks, and it takes a lot of time in the disintegration of parent rocks, and by various processes, physical processes, chemical processes, biological processes are involving in the weathering of rocks. Weathering of rocks just means the breaking down of parent or bed rocks into the disintegrated small particles of rocks by the involvement of the physical and climatic conditions. तो इस चीज को हम कहेंगे weathering of rocks. It takes a lot of time. तो weathering of rocks takes place by various processes. One, I will write the name here. The physical weathering. ये physical हम कहेंगे फिजिकल चेंज से होता है, फिजिकल इम्पैक्ट से होता है, फिजिकल फोर्स से होता है. मैकेनिकल हम कहेंगे जो फिजिकल वेदरिंग है, इट इज बाय द मैकेनिकल इफेक्ट्स. देन सेकंड इज द केमिकल वेदरिंग. It depends upon this type of weathering takes place in rocks, depends on the climatic conditions of that place, climatic conditions. Then third is the biological weathering. This type of weathering take place by the activity of animals, by the activity of plants, by the activity of microorganisms. तो अब एक ही सूरत में वेदरिंग ऑफ रॉक्स नहीं होता है. we can say there is the physical weathering of rocks, जिसमें मैकेनिकल फोर्स इन्वॉल्व होता है, मैकेनिकल कंडीशंस, फिजिकल कंडीशंस इन्वॉल्व होता है. देन सेकंड इज द केमिकल वेदरिंग, जिसमें जो केमिकल क्लाइमेटिक कंडीशन उस रीजन का होता है, because of the climatic conditions, there take place the chemical weathering. Then here is the biological weathering, by the activity of animals, plants, microorganisms. तो इस तरह से जो weathering rocks में होते हैं, it takes the millions of years, it takes lot of time in the disintegration of parent rocks. तो by these means, तो यहाँ weathering of rock जो होते हैं, by now we can say the first one, physical weathering. By means of physical weathering में क्या होता है? Here the physical conditions are involving here. strong winds के कारण होता है storm, heavy rainfall, glaciers, we can say here the snow,
you can say the frozen snow. These are the conditions which are responsible in causing the physical weathering. Here is the we can say shearing effect of ice. We can say here the physical weathering में आएंगे. Here the heavy rainfall, glaciers, frozen snow, shearing effect of ice. Here also the sunlight. तो इन कारण से जो physical weathering that take place by means of these, they impose all such conditions, impose the mechanical force. Dabav, mechanical force. Due to the mechanical force, they cause the disintegration of rocks. Disintegration of rocks by causing the mechanical effect. तो एक दबाव आ जाता है जो हम मेंशन करेंगे. in river bodies there is a running water is equally responsible in causing the disintegration of rocks. आप देखिए जो older type of rock होता है, हाँ बिल्कुल उसको ज्यादा टाइम हुआ होगा और it is exposed to the earth surface, तो ये चीज हो सकते हैं when the rock when such type of weathering takes place. Exposed rocks are seen on the earth's shaba. ये किन पे होता है शaba, याद रखिए, on the earth's surface. उन पे earth's surface पे they comes under such conditions, जिसके वजह से कहीं ना कहीं तरह से ये रॉक जो है कमजोर हो जाती है. तो एक एग्जांपल दे देता हूं मैं इसमें फिजिकल वेदरिंग में. Due to the how sun's heat is responsible. Due to the sun's heat, rocks जो होते हैं parent rocks, उनमें services takes place. Cracks, that means the cracks take place. Deep cracks, cracks takes place. तो किससे सन हीट के वजह से जो डे टाइम अगर हम बात कर लेंगे डेज टाइम, उस वक्त जो सन की रेडिएशन की इंटेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है. ड्यू टू दैट देयर इज द एक्सपेंशन टेक्स प्लेस. थर्मल एक्सपेंशन हम उसको कहते हैं, उस चीज को हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ रॉक्स. एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम, याद रखिए नाइट टाइम क्या होता है. नाइट टाइम में जो सन रेडिएशन की जो इंटेंसिटी वो कम होती है, देन देयर टेक प्लेस द कंट्रैक्शन. एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन आर बोथ द मैकेनिकल. दिस क्रिएट्स द मैकेनिकल इफेक्ट, जिसके वजह से जो रॉक्स में होते हैं उनमें ड्यू टू द थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन देयर टेक्स प्लेस द सर्विसेस cracks in the interior of the rocks. On the surface and the interior of the rocks they take place the cracks. They develop the cracks interior as well as exterior. तो हो सके फिर इनमें जो when the rocks, such rocks have cracks interior or exterior, it also takes the time here due to the sun's heat. Now there could be a strong wind due to the heavy rainfall, which causes the further mechanical effect, and this helps in the, then it is the first factor here, sun's heat. Also there is the multiple factor here. Also besides the wind, strong wind, due to the heavy rainfall, the rock can be break down into pieces, fragmented rocks. Then the parent rock is converted the fragmented rocks. तो या इस तरह जो आइस जो स्नो होता है ड्यूरिंग द विंटर, ड्यूरिंग द कोल्ड, ये इन क्रैक्स में पानी चला जाता है, जिसके वजह से वो फ्रोजन हो जाता है. ड्यू टू द फ्रोजन इट कॉज द शेयरिंग इफेक्ट on the sharing effect interior of the rocks
and help us in break down the rocks into the various fragments. तो इस तरह इस लिहाज से अब एक ही नहीं है, अगर एक सिचुएशन एक कंडीशन अप्लाई होता है, besides there could be there multiple of conditions which help us in the disintegration of rocks. ये सीरियल में नहीं होते, ये any time any way any condition can be applied on the parent rocks पे कभी कभार भी कोई भी कंडीशन अप्लाई होके डिसइंटीग्रेशन हो सकती है. सनस हीट, स्ट्रॉन्ग विंड, हेवी रेनफॉल. आपने देखा होगा दरियाओं में जो पत्थर होते हैं, रनिंग वाटर, running water poses the kinetic energy, and due to that energy there is the effect on the surface of the rocks, how धीरे धीरे वो रॉक होते हैं वो गोल मटोल हो जाते हैं, नहीं तो वो पहले नोकीले होते हैं और इरेगुलर साइज के होते हैं. वो राउंडेड साइज क्यों बन जाते हैं? जो आपने देखा होगा रनिंग रिवर बॉडीज में वो पत्थर गोल हुए होते हैं. हाँ, तो वो बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ द रनिंग वाटर धीरे धीरे वो घिसकता जा रहा है वो रॉक इनटू द स्मॉल सैंड पार्टिकल्स, रॉक पार्टिकल्स. तो इस चीज को हम कहेंगे वेदरिंग, दैट मीन्स disintegration of parent rocks. Then disintegration of rocks, we can say the weathering of rocks, then later on leads to the formation of soil. And now how the soil formation takes millions of years. तो इस तरह हमें कंजर्वेशन ऑफ सॉइल जरूरी है. देन वेदरिंग ऑफ रॉक के बाद केमिकल वेदरिंग है. केमिकल जो वेदरिंग है, केमिकल वेदरिंग केमिकल कंडीशंस पे, केमिकल कंडीशंस हम बात करेंगे उस रीजन, वो एरिया जो ह्यूमिड एरिया हो, वहां पे केमिकल वेदरिंग ज्यादा फास्ट रेट होता है. देयर इज द फास्ट रेट ऑफ केमिकल वेदरिंग द रीजन, वो जगह जहां पे ज्यादातर ह्यूमिड एरिया और ज्यादा मॉइस्ट ह्यूमिड एरियाज, वहां पे एक तो वाटर भी होता है और ऑक्सीजन भी, दोनों इसमें जरूरी है इन ब्रिंगिंग इन कॉजिंग द केमिकल वेदरिंग. दोनों जरूरी होता है टू कॉज द केमिकल वेदरिंग. केमिकल वेदरिंग में बहुत सारे प्रोसेस आते हैं, बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, जिस तरह जिन सेटअप से रॉक डिसइंटीग्रेशन, देयर इज द रॉक डिसइंटीग्रेशन, वेदरिंग ऑफ रॉक. फर्स्ट वन इज द solubility. Then second is the hydration. Then third is the oxidation. Then fourth one is the reduction. Then there is the fifth one, carbonation. तो ये चीजें, ये जो केमिकल इफेक्ट, केमिकल कंडीशन, केमिकल सेटअप्स है, solubility causes helps in the weathering of rocks, hydration, oxidation, reduction, carbonation. So all these include in the chemical weathering of parent rocks. Parent rocks should first of all break down into small pieces of rock particles. Then there is the chances of the formation of soil. तो इन्हीं से रॉक से ही सॉइल बनती है. तो आगे हम पढ़ेंगे सॉइल फॉर्मेशन में. तो आप देखिए यहाँ पे जो केमिकल वेदरिंग है, केमिकल वेदरिंग में भी मैंने बात की सॉल्युबिलिटी. आपने देखिए बहुत सारे जो पैरेंट रॉक्स होते हैं उनमें सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट आयन, हाँ, बहुत सारे कैल्शियम आयन, आयोडीन, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं विच आर सॉल्युबल, या हम कहेंगे लिथियम, हाँ, एटसेट्रा. और सॉल्युबल आयन जो होते हैं, सॉल्युबल आयन्स, तो वाटर के कारण, वाटर हैज अ सॉल्वेंट इफेक्ट, है ना, वाटर हैज सॉल्वेंट इफेक्ट. वाटर जो होता है इसका सॉल्वेंट इफेक्ट होता है. इट हेल्प्स इन solubilize these
these particles, these soluble जो ions होते हैं ये पानी में soluble रहते हैं, जिसके वजह से एट द एंड रॉक क्या होती है, वो पोरस बन जाता है। जब वहां से अब पानी में ये डिजोल्व होना शुरू होते हैं सच मिनरल्स, तो रॉक जो होता है वो पोरस बन जाती है, पोरस एंड इज लेबल टू डिसइंटीग्रेशन। यही पोरस रॉक, पोरस होता है विद होल्स, यही पोरस रॉक डिसइंटीग्रेट होता है, देन देयर इज डिसइंटीग्रेशन। मगर यहाँ पे कौन सा केमिकल इफेक्ट ने काम किया है, सॉल्युबिलिटी। हम कहेंगे रॉक में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, रॉक में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, से द कॉन्स्टिट्यूएंट्स और द सॉल्युबल आयन्स, जो सॉल्युबल आयन्स होते हैं वो पानी अवेलेबल, सम रॉक्स आर एम्बेडेड इन द वाटर या मॉइस्ट सॉइल में होते हैं रॉक्स, दे आर वेरी कॉमन टू हैव द इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। जो इसमें डिजोल्व्ड सॉल्युबल आयन्स होते हैं वो वाटर में अच्छे खासे से डिजोल्व होता है, सॉल्युबल होते हैं, देन वाटर है सॉल्वेंट इफेक्ट। द रॉक्स जो पेरेंट रॉक्स थे दे बिकम द पोरस एंड देन देयर इज अ चांसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, टूट जाना, फ्रेगमेंटेड में ब्रोक डाउन होना। तो जब ये कमजोर होगी पोरस, तो अदर इफेक्ट जो फिजिकल इफेक्ट है, स्ट्रॉन्ग विंड, हेवी रेनफॉल, इसको इजिली अब ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि ये रॉक अब सीमेंटेड नहीं रहा, हार्ड नहीं रहा। इनके वजह से, इनके निकलने के वजह से, जो इसमें सीमेंटेड था, हार्डनेस थी इन मिनरल सॉल्युबल मिनरल्स के मौजूद होने से, वो निकल गया, वो सॉल्युबल पानी में डिजोल्व हो गया। अब ये रॉक कमजोर हो गई है, ये पोरस, it becomes porous and loosen, and now there is a disintegration। ये एक solubility जो chemical weathering में होती है। तो then there is a hydration, then there is B part here, hydration। Hydration mean addition of water, addition of water, addition of water। जो rocks, अगर हम rock की बात हम करें, one of the हेमेटाइट रॉक, हेमेटाइट रॉक जो होती है इसकी एक खासियत होती है, व्हेन इट एब्जॉर्ब्स वाटर, इट एब्जॉर्ब्स, व्हेन इट एब्जॉर्ब्स वाटर इन द, ये इफ इट टेक प्लेस इन द ह्यूमिड रीजन, जहां मॉइस्ट सॉइल हो, जहां हवा जो मॉइस्ट एयर हो, वहां जो मौजूद हो हेमेटाइट रॉक, व्हेन इट एब्जॉर्ब्स वाटर इट चेंजेस इनटू द लेमोनाइट, लेमोनाइट रॉक में चला जाता है। तो हेमेटाइट रॉक, ऑन द एडिशन ऑफ वाटर हाइड्रेशन टेक्स प्लेस टू दिस रॉक। इस रॉक में क्या होते हैं, दिस रॉक चेंजेस इनटू द लेमोनाइट रॉक। क्या होता है, इसमें हार्डनेस होती है। इसकी क्या फीचर है, दे हैव हार्डनेस एंड इज रिजिड। ये जब ये चेंज होता है इस रॉक में, हाँ, किसके कारण, बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वाटर, तो ये रॉक चला जाता है लेमोनाइट रॉक में। ये क्या होता है, ये सिवलन होता है, फूल जाता है, एंड बिकम्स द लूजन। इसकी जो हार्डनेस, इट लॉसेस द हार्डनेस, नाउ दिस बिकम्स द सॉफ्ट रॉक। नाउ you know the other physical effect, strong wind, heavy rainfall, running water will disintegrate this rock। यहाँ ये मैं रिएक्शन फॉर्म में लिखूंगा, आप नोट पे मिस्टेक है वहां पे ठीक कर दो, नोटिस पे मिस्टेक है वो ठीक कर दो। मैं बताता हूँ, Fe2O3 ये हेमेटाइट रॉक है, हेमेटाइट रॉक। when then this rock gets the 3 times water, it changes into, here I place here 2 times, it changes into 2 times Fe2O3, हाँ, and dot या x times लिखो, x times या dot, we place a dot here 3 times। now ये water यहाँ absorb हुआ है, ये पूरा rock का constituent है। now this rock changes into the lemonite rock। ये rock यहाँ, when there is a excess absorption of water, this hematite rock here changes into lemonite rock here, this। ये यहाँ पे वहां पे नोट पे 3 times H2 है, यहाँ ये असल में इसका डॉट है, वहां पे प्लस नहीं है, डॉट है,
Yeah, that means water is absorbed in this rock. This rock contain the excess. This rock contain excess amount of water. Here is a dot, not a plus. और ये यहाँ पे H2O 3 टाइम H2O, वहाँ नोट पे लिखा है 3 टाइम H2. No, it is wrong. Here you write here the change, the mistake here, 3 times H2. Now what is the difference between this rock and this rock? This is the hematite rock, this is the limonite rock. Limonite rock की क्या प्रॉपर्टीज है? जब भी एब्जॉर्ब करता है एक्सेस वाटर, ये स्वेलो होता है, स्वेलोन, लूजन, इसमें सॉफ्टनेस आती है. और जो हेमेटाइट रॉक होते हैं ये हार्ड होता है, रिजिड होता है. तो एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद दिस रॉक चेंज इनटू द लेमन. तो ये किसका इफेक्ट है? ये किसका इफेक्ट है? इट इज द इफेक्ट ऑफ द केमिकल, that is the hydration. Hydration means when there is the addition of water, when there is a availability of rock, availability of water to the rocks, to the exposed rocks, yeah, to the rocks which are found depth in the earth's crust and the area is humid and moist. Here chemical weathering में हम और एक स्टेप पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन में होता है addition of oxygen. This takes place in the exposed surface parent rocks. When they obtain the oxygen which are present in the air, हवा में होता है oxygen. When there is the addition of, when the oxygen is available to the exposed surface rocks, some compounds are there which absorb, which on addition of oxygen, those compounds change their property, they become soluble. They become the soluble. यहाँ when the rocks get the oxygen in the atmosphere, in the it is can be present in the water, dissolved oxygen in the atmosphere, then these rocks, जो rocks है, they change into oxides in state. Oxides in state में जब ये change हो गए तो कुछ compounds oxide form में चला जाता है. They get the oxide compounds. After getting the oxygen, they change into oxide compounds. Then oxygen compound later on then chemically reacted with water, it changes into, then there is a chances of solubility. Then there is a dissolving effect of water, dissolving effect of water. इस तरह जो रॉक है उसकी जो हार्डनेस है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज होता है. तो मैंने बताया ऑक्सीडेशन मीन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड वाटर ऑक्सीजन टू द एक्सपोज्ड सरफेस रॉक्स. जो उनमें कंपाउंड्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो ऑक्साइड स्टेट में आ जाते हैं. ऑक्साइड स्टेट में जो ऑक्साइड कंपाउंड्स बने वो लेटर ऑन केमिकल रिएक्शन करते हैं वाटर के बी साइड, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. देन those oxide compounds can be soluble in the water, then there is a solubility, dissolving effect of water. जिस तरह ये रॉक इस तरीके से कमजोर हो जाती है. It is the impact of available of oxygen in the process of oxidation. Then there is a reduction. Reduction is opposite of the oxidation. Reduction. Then there is a reduction. रिडक्शन में क्या होता है? अगर देयर इज द चांसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन गैस, या और वी कैन से देयर इज द एडिशन, या और वी कैन से दैट देयर इज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स टू द रॉक मिनरल्स, जिनके वजह से जो रॉक मिनरल्स होते हैं वो उनमें क्या आती है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करने से उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते मिनरल्स होते हैं वो उनमें क्या आ जाती है, सॉल्युबिलिटी. तो उनमें एक डिसॉल्विंग कैरेक्टर आता है, डिसॉल्विंग कैरेक्टर आ जाता है. हाँ, आफ्टर दे गेन द
आयरन या आयरन सॉरी इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स उन रॉक मिनरल्स में क्या होता है, वो रॉक मिनरल्स में नाउ दे आर नाउ रेडी टू हैव द सॉल्युबिलिटी इफेक्ट, सॉल्युबिलिटी व्हेन दे हैव द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वो उसमें सॉल्युबल होंगे ना। इससे पहले ये मिनरल्स इनसॉल्युबल थे इन द डिफिशिएंसी ऑफ, ये रॉक मिनरल्स इनसे पहले क्या थे, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल क्या थे, ड्यू टू हो सके डिफिशिएंसी इन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। अब जब इनको इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ या इनको मिला कहीं तरीके से, कहीं तरह से इलेक्ट्रॉन्स इनको मिला किसी कंपाउंड से, किसी एजेंट से इलेक्ट्रॉन्स मिले, तो अब ये इनमें इनकी प्रॉपर्टी चेंज होती है, इनसॉल्युबल टू सॉल्युबल। नाउ दीज become soluble minerals have solubility in water, then they have a dissolved character, then इस दिशा में जो रिडक्शन है, रिडक्शन में क्या होता है, there is again disintegration of rocks, ये केमिकल इफेक्ट में आता है, रिडक्शन ऑफ रॉक्स, there is the reducing effect। जैसे कि एग्जांपल मैं दे देता हूं इसमें, रिडक्शन में मैं एग्जांपल दे देता हूं, रिडक्शन इन रॉक्स। मान लीजिए हमारे पास रॉक है, ये भी आप चेंज करिए, जो फेरिक रॉक होता है, फेरिक, हाँ, व्हेन इट ऑब्टेन द इलेक्ट्रॉन इट चेंज इनटू द फेरस रॉक। फेरिक रॉक क्या होता है, ये इट इज आयरन कंटेनिंग रॉक दैट इट इज बिफोर इनसॉल्युबल, हाँ, इन नेचर। नाउ फेरस रॉक में क्या होता है, जब इसको इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स मिलता है, it changes, now this rock becomes soluble in nature। आप डिफरेंस देखिए इसमें, ये मैंने एग्जांपल इसमें मेंशन किया है। पहले जो पेरेंट नोट पे यहाँ 2 बार आया है फेरस, जो पहला जो फेरस वहां पे लिखा है, वहां पे आप फेरिक रॉक लिखो। जब भी इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलता है, ये चेंज होता है किसमें, फेरस में, इट इज सॉल्युबल इन नेचर, दिस रॉक इज इनसॉल्युबल इन नेचर। तो ये सॉल्युबिलिटी के कारण नाउ दिस रॉक हैज द डिसॉल्विंग इफेक्ट, हैज द सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इट कैन बी डिसइंटीग्रेटेड। इससे पहले ये रॉक, जो रॉक था फेरिक रॉक, इट इज रेजिस्टेंट टू द वाटर। व्हेन देयर इज अ एडिशन of electron it changes into from the ferric to the ferrous, now there is increasing of the solubility character in this rock। So as the ferrous is now this ferrous rock is much more soluble in water than the ferric rock। इस चीज को रिडक्शन, ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, ये वहां पे चेंज करना नोट पे। Then there is the carbonation, this is the 5th law, carbonation means addition of carbon dioxide gas, we can say the carbonation means chemical effect of carbonic acid। कार्बन, जो कुछ लाइमस्टोन जो होते हैं, ड्यू टू द कार्बोनिक एसिड, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब ऐड होता है वाटर के साथ, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, है ना, H2CO3, हाँ, कार्बोनिक एसिड, देन देयर इज अ चांस ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड का क्या है, कोर्यूसिव इफेक्ट, इट हैज अ कोर्यूसिव इफेक्ट ऑन रॉक्स, खासतौर किन रॉक्स को, लाइमस्टोन रॉक्स आर वेरी प्रोन टू द डिसइंटीग्रेशन बाय द एक्सपोजर ऑफ कार्बोनिक एसिड। लाइमस्टोन रॉक जो होता है वो जल्दी डिसइंटीग्रेट होता है by the effect of chemical effect of carbonic acid, or when there is addition of carbon dioxide, this carbon dioxide is later on soluble in water, then there is a carbonic acid formation, then this carbonic acid has chemical effect on the rocks, parent rocks, which example is more common example, or the limestone rocks,
which very less time disintegrate by the effect of carbonic. It is all about the chemical weathering of rocks. Now is the biological weathering as the role playing by the living organisms. Biological weathering में क्या होता है? Here is the weathering of rocks. Continue here. Biological weathering. Biological weathering में living organisms एक्टिविटी के कारण उनके डे टू डे एक्टिविटी के कारण लाइफ सर्वाइवल के कारण डिसाइड्स डिसइंटीग्रेशन ऑफ पेरेंट रॉक. आपको पता है जो एनिमल्स का जो एक्सक्रीटा होता है उन एक्सक्रीटा में होता है यूरिक एसिड. आपको पता है दिस इज द एसिड and the acid have always the corrosive effect. It has a corrosive effect which help us in then causing the disintegration of rocks into the fragmented rocks. Number 1, जो plants होते हैं, I mean the plants here, PLN, plants में जो roots होते हैं, those roots go to the depth of earth's crust. अगर हम सब सॉइल लेयर्स की बात हम कर लेंगे, देखो द मैकेनिकल effect when they are penetrating deep inside the earth, they cause the mechanical effect on rocks that help us in the disintegration of rocks. Though plants' participation are equally involving in the disintegration of rocks, here the animals excreta, खास तौर उसमें जो यूरिक एसिड होता है, यूरिया होता है या अदर ऑर्गेनिक एसिड होता है वेस्ट में, उनका एक्सक्रीटा में, तो उनमें corrosive effect होता है. They slowly degrade the surface layer of the rocks. When there is the other effect, strong wind, heavy rainfall, तो धीरे धीरे करके वो जो रॉक होती है वो गल जाती है, उसका जो ऊपर वाला जो लेयर होती है वो डिकम्पोज होना शुरू होता है. Then there is also the if we say that here the organisms or the lichenous have the disintegration of rocks में इसका रोल है. क्या होते हैं इनके वजह से, क्या होता है, there is retaining of moisture होता है, retaining of moisture. आपने देखा